My I have only one step, and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under. Please let me finish, Rajdeep. Unless you want to answer it for me. You do that also sometimes. Yeah. So my job, as I see it, is to defend the democratic nature of this country. And I will do whatever I have to do, to defend the democratic nature of this country. What does that mean? That means defending the institutions of this country. That means defending the voice of the poor people of this country. That means telling the people of this country the truth about people like Mr. Adani, who are basically exploiting the relationship they have with the Prime Minister. Yeah, Pallavi. Pallavi. Please, 1 second. Let's go. Look, see, these are legal matters. It makes me no difference. I told them, it makes me no difference if I'm disqualified, not qualified, whatever. It makes me no difference. Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not stop. Mr. Gandhi, Yeah, Mr. Pallavi. Gandhi, two things here. One, are you worried or apprehensive about the political relevance of, say, the opposition and the Congress Do I look party worried post? to you? One. Second, Do I look worried to you? I'm excited. I'm happy that these people have given me the best gift they could give me. and second, Mr. Gandhi, is that BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then perhaps you wouldn't be facing the law today. Your response to that? My response to that is that when somebody is guilty of something, they want to distract everybody's attention. Right? If you catch a thief, the first thing he says is, I didn't do it. The second thing he says, look there, look there, look there, look there. Right? That's what the BJP is doing. We have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's companies. Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. He does not generate this type of money. So that money has come from someone. All this, OBC, disqualification, anti-national, all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling. That his relationship with Mr. Adani is going to be exposed. Let me tell you, that relationship is going to be exposed. Nobody is going to stop that. It is going to happen. Because the opposition is going to press this thing until we find the answer. हाँ रवि, सिसोदिया जी को दे दो. राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया. पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था. भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया. आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार. थोड़ा घूम घाम के पूछो. क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं. घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं. आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो. देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी. हाँ, तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत. राहुल जी हवा निकल गई. राहुल जी बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते. अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते. तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है. गांधी किसी से माफी नहीं मांगता. और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए. 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए. मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता. आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े.
वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। थैंक यू। Thank you. तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा फिर से कि मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और ये कोई देख नहीं रहा। अडानी कंपनी में 20,000 करोड़ का निवेशक कौन है, किसने इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट की है, इसका सोर्स बताया जाए। संसद में मंत्रियों ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा और ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। मोदी अडानी का रिश्ता क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोदी एंड अडानी? ये बार बार राहुल गांधी ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, चाहे वो मेरी सदस्यता का मामला हो, चाहे विदेश में दिए गए बयान का मेरा मैटर हो, या किसी भी तरीके से और जो एक्शन हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन के लिए हो रहा है, ताकि मैं सवाल ना पूछ सकूं और सरकार मेरे सवालों से बच सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष से डर गए हैं और मैं कोई दूसरी स्पीच ना दे सकूं अपनी, मैं अपना दूसरा स्टेटमेंट ना दे सकूं संसद में, इसीलिए मुझे संसद में बोलने से रोका गया। मैंने लेटर लिखा, मैं स्पीकर से भी मिला और उन्होंने कहा कि आप तो डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो स्पीकर ने कहा अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आप चाय पी सकते हैं मेरे साथ। तो इस तरह से राहुल गांधी ने आज मीडिया के सामने अपनी बातें रखी और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। जब उनकी सदस्यता को लेकर कोई सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लीगल मैटर है, इस पर मेरी टीम जो है एक्सपर्ट हैं वो जवाब देंगे। सियासत से जुड़ा हुआ सवाल है उस पर राहुल गांधी खुलकर बोले हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया है, चाहे मुझे पनिशमेंट का मामला हो या मेरी सदस्यता रद्द करने का मामला हो, ये हमें एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, इससे बीजेपी को नुकसान होगा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में, कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता।